Hallelujah. Shalom. Hallelujah. Greetings in Jesus' wonderful name. Praise the name of the Lord. Hallelujah. One moment, please. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah. Hallelujah. Worthy is the Lamb slain on Calvary. Lord, you lay down your life for my sin, that I might be free. Worthy is the Lamb slain on Calvary. Excuse me. Lord, you lay down your life for our sins, that we might be free. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and the earth are filled with your glory. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are filled with your glory. We worship you, Lamb of God. We worship you, highly exalted one, seated at the right hand of majesty, above all powers and principalities, dominions and spiritual authorities. Hallelujah. Every rule and every empire, every sovereignty, your name is above. Hallelujah. Highly exalted one. For that is the name that God the Father gave you. Hallelujah. For he has given him a name that is above every name, that every knee must bow of the things and being in heaven, and of the things and being on the earth, and of the things and being beneath the earth, that every tongue must confess and proclaim that Jesus Christ of Nazareth, the King of glory, is the Lord. Hallelujah. Lord Jesus, we declare your kingship, your rulership, your authority. Hallelujah. Lord, we come under your high priesthood. Your high priesthood that you received is after the order of Melchizedek. It's not ritualistic, it's not traditional, it's not through human genes. Hallelujah. It's not generically transmitted. You received it from the Father. And Lord, you made us priests after your order. We are priests not after the order of Aaronic heritage, but we are after the order of Melchizedek. We thank you, Father. तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं प्रभु। आज तेरे वचन पे जब हम मनन करते हैं, Lord, that you will break the word. When you break the word, then the eyes are opened, then the light is disseminated, then people see your glory, Lord. So break your word. We want to see you. We want to see your glory. We want to be drawn closer to you, Lord Jesus. Hallelujah. We have no agenda but you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Make us your fragrance. Make us the open pots of your fragrance, and transform us into the image, the express image of the Son of the Most High God. Hallelujah. Father, we pray for Brother Sandeep's daughter right now, for Sarah, that you will heal her. Let's all pray. Everybody pray for the little girl, Sarah. Unleash God's healing anointing over her. Hallelujah. Father, we unleash the healing anointing, and we deploy angels in the name of Yahushua HaMashiach around her.
Also around Brother Lalit and his family in Delhi, Brother Lalit Mehra and his household, Lord, his father-in-law, his entire family, we cover them under the blood of the Lamb. तेरे लहू की जय, तेरी महिमा हो यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं। हालेलुया। मैं कल आपसे बात कर रहा था लेकिन हम उसे कंक्लूड नहीं कर पाए। देयर इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज इन बुक ऑफ एमस। आमोस की पुस्तक में से मैं आपको बता रहा था, आमोस एक साधारण चरवाहा है, भेड़ों को चराता है, बकरियों को चराता है। यहोवा उसे आवाज़ लगाता है और यहोवा उसे कहता है, वो साउथ का, सदर्न किंगडम का, यहूदा का रहने वाला है, और यहोवा परमेश्वर उसे नॉर्दर्न किंगडम इज़राइल में भेजता है। इज़राइल वो राष्ट्र है जहाँ पे यरोबोआम ने पूरे के पूरे इस्राएल को यहोवा के मार्गों से भटका दिया है। उन्होंने 2 बछड़े बनाए हैं और दान में और बैतेल में उन्होंने बछड़े रख के मूर्ति पूजा के गढ़ों को तैयार किया है। सबसे बड़ा विचक्राफ्ट, जादूगरी और मूर्ति पूजा का गढ़ है बैतेल। बैतेल का पहले नाम था हाउस ऑफ गॉड। मैंने आपको बैतेल के विषय में बताया, वो जगह जहाँ पे सीढ़ी लगी है और वो सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह हैं। वो सीढ़ी का सिरा पृथ्वी से और दूसरा सिरा स्वर्ग से जुड़ा है, और वहाँ ऊपर के सिरे के ऊपर राजाधिराजा महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा विराजमान है। उसी परमेश्वर के पवित्र घर को जादूगरी में, टूने में, शैतानी कामों में, मूर्ति पूजा में बदल दिया गया। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना प्रॉपरली? हालेलुया। तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर साउथ से भेजता है। आपको मालूम, परमेश्वर किसी को कहीं से भी कहीं भेज सकता है अपने काम के लिए। कुछ पास्टर्स को प्रॉब्लम होती है, जी हमारे इलाके में आके प्रचार कर रहे हैं। एक बार ऐसी एक पास्टर थे, लुधियाना के पास की बात है, वहाँ पे एक भाई गया सेवा करने के लिए, बाइबल स्कूल से पढ़ा, बहुत ही अच्छे हृदय वाला भाई, प्रभु से प्यार करता था। पास्टर जी को भी मैं जानता था, उस भाई को भी मैं जानता था। उनके बीच में झगड़ा हुआ, मुझे बुलाया उन्होंने कन्वेंशन के लिए, तो पास्टर जी गुस्से में थे, नहीं आए। तो मैं पास्टर जी के पास गया, वो भी मुझे जानते थे। मैंने उनसे बात की, मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला ये मेरे इलाके में प्रचार करता है आके। तो मुझे उस इलाके की पूरी जानकारी थी, डेमोग्राफिक, उस पूरे रीजन में 1.5 लाख के करीब अन्य जाति के लोग थे। मैंने उस भाई को भी बुला लिया वहीं, वो भी आ गया। मैंने पास्टर जी से पूछा, मैंने पूछा आपकी कलीसिया में कितने लोग हैं? उन्होंने बोला 150। मैंने पूछा कितने लोग होंगे यहाँ पे पॉपुलेशन? तो उन्होंने बोला 1.5 लाख के करीब होगी। तो मैंने बोला 150 लोग आपकी चर्च में आते हैं, कितने साल से आप सेवा कर रहे हो? जी मैं तो 35 साल से सेवा कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने बोला ये जो भाई आया है इधर सेवा करने के लिए, ये किसी और स्टेट से आया है, इसको प्रभु ने भेजा है लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि ये इस इलाके में सेवा करे, तो यहाँ के जो 1.5 लाख 1,60,000 लोग हैं, आप परमेश्वर के आगे जिम्मेदारी ले लीजिए कि यहाँ के जितने लोग हैं उन सब की आत्माओं के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा कर्तव्य है उन्हें प्रभु के विषय में बताना। मैं एक एक के पास जाके प्रभु के विषय में बताऊँगा और उनकी रूहों की जिम्मेदारी मेरी होगी, प्रभु को मैं हिसाब दूंगा। मैंने बोला आप ये प्रार्थना करो, ये भाई भी यहीं बैठा, मैं भी हूँ, आप भी हो, मैं इसको यहाँ से भेज दूंगा, ये मेरी बात मानता है। पास्टर जी बिदक गए, उन्होंने दुआ नहीं की। मैंने बोला आप जिम्मेदारी तो लेते नहीं इनकी रूहों की, फिर आपको क्यों एतराज़ है अगर कोई और आके यहाँ प्रचार करता है? तो वचन में मैंने आपको बताया कि आमोस को वहाँ का याजक भगाता है कि तू यहाँ पे क्यों प्रचार कर रहा है, गो बैक टू द साउथ, साउथ में चला जा। तो मैं भी आपको कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। रोमन कैथोलिसिज्म 3री सदी 325 में बहुत मजबूत जड़ें पकड़ गया। जो प्रेरितों की कलीसिया थी, जो पंतेकुस के दिन पैदा हुई। आज शाम को पंतेकुस के विषय पे बहुत ज़बरदस्त वचन प्रभु ने मुझे दिया जो हम सीखेंगे प्रभु से। पंतेकुस के दिन जो कलीसिया पैदा हुई, प्रेरितों की कलीसिया, जिसमें परमेश्वर के अभिषिक्त प्रेरित कलाम सुनाते थे। सभी प्रेरित शहीद हुए दुनिया के अलग अलग देशों में जाके। यूहन्ना को मार नहीं पाया नीरो, किसी भी रीति से यूहन्ना मरता नहीं था।
यूहन्ना का चेला था पॉलीकार्प, पॉलीकार्प का आइरेनियस, आइरेनियस का इग्नाइशियस। तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी चेलों की चली। जो सच्चा कलाम था, यूहन्ना को परमेश्वर ने पतमस के आइलैंड में, पैटमस के आइलैंड में, जहाँ उसे सजा देकर भेजा गया था, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल की एक सबसे अद्भुत किताब प्रकाशित वाक्य उसको दिया। तो तीसरी सेंचुरी में 325, जैसे कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था, जो रोमन, जो वेस्टर्न लेग थी रोम की, उसके जनरल का बेटा था, उसने मसीहत को ऑफिशियली, सरकारी तौर पे पूरे रोम का धर्म घोषित कर दिया, क्योंकि उसने साइन देखा आसमान में, तारों ने बनाया साइन, एने साइनो विंसे, इस निशान में तेरी जीत होगी। उसने क्रूस का निशान फौजियों की वर्दियों पे लगवा दिया, सब सरकारी इमारतों पे क्रूस लग गया और वो लड़ाई जीत गए और क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल धर्म बन गया। नया जन्म पाना, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा तौबा करके नया जन्म पाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना, जल का बपतिस्मा लेना, ये शिक्षाएं सारी ख़त्म हो गई। सब दुनिया के लोग चर्च के अंदर आ गए। वो अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने पुराने धर्म की दंत कथाएं, सभी बातें बीच में मिक्स कर दी उन्होंने। जादूगरी, टोना, सब बातें बीच में ब्लेंड करके एक नया गुलदस्ता बनाया गया, रोमन कैथोलिसिज्म। और रोमन कैथोलिक चर्च ने बाइबल को हाईजैक कर लिया। हिस्ट्री पढ़े आप, जो भी चीज़ जूइश थी, हिब्रेक थी, यहूदी थी, उस सबको मिटा दिया उन्होंने और पूरी बाइबल की ट्रांसलेशन कर दी, जिसे वल्गेट बोलते हैं, लैटिन भाषा में। और लैटिन ज़्यादा लोग जानते नहीं थे उस समय और लोगों को सिखाई भी नहीं जाती थी। लोगों से ये कहते थे ये पवित्र भाषा है, और विकर, कार्डिनल, बिशप, पोप यही जानते थे। जो वो कलाम लिखते थे, पढ़ते थे, वही लोगों को सर्कुलेट किया जाता था। सदियों तक अंधेरे में चली गई कलीसिया, किसी ने कलाम नहीं पढ़ा। और ये सिखाया गया कि मुक्ति सैक्रामेंट के द्वारा है, ये सैक्रामेंट आप लेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। ये भी शिक्षा दी गई कि यदि आपका कोई रिश्तेदार, संबंधी मर गया प्रभु को ग्रहण किए बगैर, कोई बात नहीं, वो अभी ना स्वर्ग में गया ना नरक में गया, इंटरमीडिएटरी जगह में, पर्गेटोरी में है। तो आप सैक्रामेंट पूरे करवाइए, बड़े बिशप के पास आके पैसा लगेगा, ये पैसे दीजिए इतने इतने, और ये रिचुअल पूरे कर लीजिए, तो वो बंदा पर्गेटोरी से परमेश्वर उसको स्वर्ग में भेज देगा। इस तरह की शैतानी शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं, इस तरह की वो शिक्षाएं जो परमेश्वर के कलाम में नहीं, जो अन्य जाति की थी, अन्य जाति के रीति रिवाज। बाबिलोन का धर्म वापस आ गया, बाबिलोन वापस आ गया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर के बंदे खड़े हुए, लूथर, कैल्विन, ज्विंगली, क्रामर, ये सब कैथोलिक थे, लेकिन इन्होंने वचन को पढ़ना शुरू किया। इन्होंने वचन पढ़ा ओरिजिनल में, इनको ओरिजिनल दस्तावेज मिले, हिब्रेक, इन्होंने उनको पढ़ा। जब इन्होंने उनको पढ़ा तो इन्होंने देखा कि चर्च तो शैतानी बातों से भरी पड़ी है, पेगनिज्म से, दुनिया के झूठे धर्मों के रीति रिवाज, परंपराएं, सब इसके बीच में रोमन कैथोलिसिज्म में। उन्होंने सच्चा कलाम जब पढ़ा तो उनको समझ आई कि सच्चा कलाम क्या कहता है। उनको पता लगा कि मुक्ति जो है विश्वास से है, सैक्रामेंट से नहीं है। स्वर्ग का दाखिला यीशु मसीह है, रोमन कैथोलिक चर्च नहीं है। वो सिखाते थे रोमन कैथोलिक चर्च गेटवे टू हेवन है, तो उन्होंने बचाया स्वर्ग का दरवाज़ा तो यीशु मसीह है। तो कुछ जो लोग कन्वर्ट हुए, उन्होंने फिर भी कंप्रोमाइज़ किया। जैसे मार्टिन लूथर ने क्या कंप्रोमाइज़ किया, वो यहूदी लोगों के विरोध में चला गया। 302 लाइज ऑफ द जूज उसने लिखा। वो यहूदियों को स्कम ऑफ द अर्थ कहता था, इसलिए उसके जीवन पे एक साइड में उसके जीवन पे भी बड़ा भयंकर श्राप था, क्योंकि वो एंटी सेमाइट था। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लूथर की शिक्षाओं से प्रेरित होके हिटलर बना, जिसने 60 लाख यहूदियों को गैस चेम्बर्स में मारा, कंसंट्रेशन कैंप में इतने
शैतानी और इनह्यूमन ढंग से मारा कि इंसान के क्या, दरिंदों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि लूथर ने, ये सब लोग लगे थे हिब्राइक रूट मिटाने के लिए, इब्रानी चीज़ें मिटा दी जाएं। पहले हेलेनिस्टिक किया गया कलाम को। हेलेनिस्टिक का मतलब सब कुछ ग्रीक 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 में कर दिया गया। ये सब एंटी सेमिटिज्म की जड़ें हैं। सुपरसेशनिज्म, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी इनको बोलते। फिर इन्होंने क्या किया स्कॉलर्स ने कलाम को इंटरप्रेट करने का ढंग बनाया, ग्रीक ढंग, जिसे हम हर्मेन्यूटिक्स बोलते हैं। हर्मिस जो उनका देवता है ना, यूनानियों का देवता है हर्मिस, गॉड ऑफ विजडम, उसके नाम से हर्मेन्यूटिक्स बनाया गया। तो कुछ स्कॉलर जो थे वो तो बिल्कुल सच्चे कलाम के संग गए, बिल्कुल विरोध किया उन्होंने। लूथर ने बड़े बड़े जो पदवियां थी, पोप, हायरार्की, कार्डिनल, का विरोध नहीं किया उसने। कुछ ने किया, कुछ ने एरर को, गलती को सुधारा, लेकिन गलती के साथ गलती को सुधारा। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती इंट्रोड्यूस कर दी। लेकिन कुछ सच्चे खड़े हुए। हर्मेन्यूटिक्स क्या था? हर्मेन्यूटिक्स वाज created by purely Christian humanistic idea that was based on 16th century Christian humanism। ये क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म से बनाया गया। आपको मालूम, कैल्विन वॉज अ ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्टिक बंदा था कैल्विन, जिसने वंस सेव्ड फॉर एवर सेव्ड की डॉक्ट्रिन निकाली। आपको मालूम, चर्च हिस्ट्री के अंदर डिबेट चलती रही है सदियों से, आर्मीनियनिज्म और कैल्विनिज्म। उस पर फिर किसी समय बात करेंगे। इरास्मस नाम का एक बहुत बड़ा स्कॉलर जो रॉटरडैम का था, उसने असल में वो अंडे रखे जिस अंडों में से लूथर ने अपनी डॉक्ट्रिन निकाली है। मुकम्मल तौर पे रेडिकली ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, थोड़ा थोड़ा, ताकि पूरी तरह से जो ऑर्डर है, बड़े बड़े जो ऊपर पोप बिशप बैठे हैं, वो हिल ना जाएं, उनके साथ दुश्मनी, शत्रुता मोल ना ली जाए। तो जॉन कॉलर नाम का एक व्यक्ति इंग्लैंड में था, फिर फ्रांस में कुछ व्यक्ति खड़े हुए। रेनेसांस का पीरियड इसे कहा जाता है। अगर आप क्रिश्चियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पीरियड ऑफ रेनेसांस, तो जो लोग, बहुत सारे लोग थे जो टेक्स्ट पढ़ नहीं सकते थे वलगेट में, और पढ़ना अलाउड भी नहीं था लोगों को। बाइबल ओरिजिनल को पढ़ना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो वलगेट वर्जन था जो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। अगर आप पढ़ेंगे जो कैल्विन और कुछ ह्यूमनिस्टिक लोगों ने हर्मेन्यूटिक्स को बनाया, हर्मेन्यूटिक्स जो बाइबल थियोलॉजिकल सेमिनरी में सिखाई जाती है, कलाम को इंटरप्रेट करने के लिए, कलाम को सीखने के लिए हर्मेन्यूटिक्स के लॉज है। उन लॉज से आप कलाम को समझें, ये सिखाते हैं। ये दायरा है, ये पैरामीटर है, ऐसे। तो कैल्विन जो था वो स्कॉलर था, उसने सेकुलर भी बहुत सारी किताबें लिखी। अगर आप उसके सेकुलर काम देखेंगे, कैल्विन के सिनेकस डिक्लेमेंटिया में जिस ढंग से वो दूसरी चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, वही रूल्स उसने लगाए हैं बाइबल को इंटरप्रेट करने के लिए, ग्रामेटिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सेजेसिस। So hermeneutics in itself in certain areas is absolutely faulty. Hallelujah. hermeneutics के प्रिंसिपल से आप नहीं समझ सकते हिब्राइक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था, कोई भी इटेमोलॉजिकल साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन आज तक ये बात ढूंढ नहीं पाया कि हिब्रू लैंग्वेज कहाँ पैदा हुई, किसने इन्वेंट की, किसने बनाई। क्योंकि जो इब्रानी भाषा है ये टाइम एंड स्पेस की नहीं है, टाइम एंड स्पेस से परे की है। इस भाषा को पैदा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आपको मालूम, इन सच्चे संतों ने ढूंढा दैट साल्वेशन इज नॉट बाय सैक्रामेंट, साल्वेशन इज बाय फेथ। हालेलुया। तो जो ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल एक्सेजेसिस है, इट इज गुड व्हाट इट सेज, नॉट गुड व्हाट इट फेल्स टू से। तो क्या है उसकी, अब सुनिए ध्यान से। जो सेनेकस डिक्लेमेंटिया, जिसे हम कहते हैं प्लेन शब्दों में ग्रामेटिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सेजेसिस ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, ये सही है। इट इज गुड इन व्हाट इट सेज, बट इट इज नॉट गुड व्हाट इट डजंट से। हालेलुया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम की सही इंटरप्रिटेशन, सही ढंग से वचन को समझना, सही ढंग से परमेश्वर के कलाम को जानना। जैसे मिसाल के तौर पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दिस सिनफुल एंड अडल्टरस जनरेशन, ये पापी और व्यभिचारी पीढ़ी निशान मांगती है, पर इन्हें कोई निशान नहीं दिया जाएगा, इन्हें कोई निशान नहीं दिया जाएगा। ठीक है। फिर दूसरी जगह यीशु मसीह कहते हैं, जैसे जोना नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के घर में 3 दिन और 3 रात रहेगा। तो 2 इंटरप्रिटेशन हो गई। जोना वॉज अ जूइश प्रॉफिट। जोना जो है एक तो जेंटाइल के लिए निशान है ये, दूसरा जूस के लिए निशान है ये। सो 2 इंटरप्रिटेशंस। तो जो सेनेकस डिक्लेमेंटिया है, ग्रामेटिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सेजेसिस है, वो ये बताता है कि एक ही इंटरप्रिटेशन है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। कल मैं आपको बता रहा था, मैं चाहता हूं मैं आपको वापस लेके चलूं जिस जगह हम परमेश्वर के कलाम में गए थे। कल मैं आपको बता रहा था, बाइबल की जो लैंग्वेज है बहुत रिच है, हिब्रू। ये कई डिमेंशंस पे, कई लेवल पे डिकोड होती है। बाइबल में मेटाफोरिक लैंग्वेज है, बाइबल के अंदर सैरकेज़म है, बाइबल के अंदर वर्ड प्ले है, बाइबल के अंदर पन्स यूज़ किए गए हैं, बाइबल के अंदर इडियोमेटिक लैंग्वेज है, बाइबल के अंदर जूइश कोलोकियलिज्म है, यहूदियों को कोलोकियलिज्म है। सो इसको डीप समझने के लिए आपको कलाम की गहराई में जाना पड़ेगा और हिब्राइक, इब्रानी दर्शन को आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। तो कल मैं आपको बता रहा था कि कैसे सब कुछ भ्रष्ट था। आत्मिक गलियारों में भ्रष्टाचार था, पॉलिटिकल एरिया में भ्रष्टाचार था, याजक भ्रष्ट थे और नबी झूठे दर्शनों की बात करते थे। तो जो सच्चा यहोवा का बंदा खड़ा होता था, उसे यहोवा का रूह लेके गया। कल मैंने आपको बताया इसका 7 अध्याय निकाल लीजिए, आमोस नबी की पुस्तक 7 अध्याय। कल का थोड़ा सा मैं रिफ्रेज करता हूँ, लेकिन आज मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, तो ध्यान से आप सुनिएगा। शाम को हम शबोत पेंटेकॉस्ट की सेलिब्रेशन के ऊपर परमेश्वर के कलाम को सीखेंगे, लेकिन अभी आप ज़रा ध्यान से सुनिए परमेश्वर का कलाम। आमोस नबी की किताब, उसका 7 अध्याय। आमोस नबी क्या करता है? पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ लीजिएगा आप खुद, आमोस 1 का 1। आमोस को यहूदा से यहोवा उठा के लेके जाता है। कहाँ? नॉर्थ में। वो वहाँ जाके, मुझे नहीं मालूम किराए के घर में रहता है, किसी धर्मी जन के घर में रहता है, भविष्यवाणी करता है। और उसकी भविष्यवाणी बहुत कटीली है, राजा के विरोध में है, राजा के कामों के विरोध में है, राजा के बड़े बड़े अधिकारियों के जो भ्रष्ट हैं, घूस लेते हैं, झूठे, उनके विरोध में है। जो वहाँ पे याजक है उसके विरोध में है, जो वहाँ के नबी हैं उनके विरोध में है। बहुत कटु वचन है, मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं है। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू पोर हिज अनॉइंटिंग, ये नहीं है कलाम, सच्चा कलाम है। तो क्या होता है, मैं शॉर्ट करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ 10 वचन में, 7 के 10 में। देन अमज़ाया द प्रीस्ट ऑफ बैतल सेंट टू जेरोबोआम किंग ऑफ इजराइल सेइंग, एमस हैथ कंस्पायर्ड अगेंस्ट दी इन द मिड्स ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, द लैंड इज नॉट एबल टू बियर हिज वर्ड्स। ये अमज़ाया एक नबी है, प्रीस्ट है, और बैतल के अंदर इन्होंने क्या बनाया है? अपना ही मंदिर बनाया है, यहोवा ने नहीं बनाया। बछड़े की पूजा करते हैं शैतानी, वहाँ पे ये झूठे याजक हैं, भ्रष्ट याजक हैं। फॉर दस एमस सेयथ जेरोबोआम शैल डाई बाय द सोर्ड, नबी कह रहा है कि राजा तलवार से मरेगा,
Israel shall surely be led captive out of their own land. इसराइल असीरी में गुलामी में चला जाएगा. एंड अमज़ाया सेड अनटू एमस, पहले राजा को जाके बोलता है कि तेरे राज को पलटना चाहता है. ये पॉलिटिकली कंस्पायर कर रहा है. प्रभु के बंदों को कुछ नहीं लेना देना पॉलिटिकल गलियारों से. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स. They don't want political affiliation. They are not looking for name, fame, power, wealth. They are not looking for that. They are sent by God and they carry the message of the Lord. True prophet, सच्चे नबी. तो सुनिए आगे. And Amaziah said unto Amos, Amaziah आमोस से कहता है, O thou seer, go flee thee away into the land of Judah. भाग जा यहाँ से, यहूदा चला जा. एंड देयर ईट ब्रेड एंड प्रोफेसाई देयर, वहां जाके नबूवत कर. सच्ची नबूवत नहीं चाहिए, सच्चा कलाम नहीं चाहिए लोगों को, बरकतें चाहिए. आओ प्रोफेसाई पापा, प्रोफेसाई पापा, पापा प्रोफेसाई, फायर 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 इज फॉलिंग, ये चाहिए लोगों को. ये सच्चा कलाम नहीं चाहिए. हालेलुया. तो क्या लिखा है? बट प्रोफेसाई नॉट अगेन एनी मोर एट बेतेल. बैतेल में आके, बैतेल क्या था? बैतएल, गॉड, ये यहोवा का घर था किसी समय. यहाँ पे सीढ़ी थी जो स्वर्ग में जाके खुलती थी. बैतेल में इब्राहिम ने जगवेदी बनाई, इसहाक ने जगवेदी बनाई. बैतेल में याकूब ने जगवेदी बनाई, पत्थर के ऊपर तेल डाला, यहोवा की उपासना की. यहाँ पे यहोवा के दूत ऊपर चढ़ते थे, नीचे उतरते थे. ये पोर्टल था एक यहोवा की हजूरी का. लेकिन यहाँ पे शैतान ने यहोवा की ओर पीठ कर दी है. क्या कहते हैं? बट प्रोफेसाई एनी मोर एट बैतेल. नाम वही रखा है, द हाउस ऑफ गॉड, बट दिस इज नॉट द हाउस ऑफ गॉड. फॉर इट इज किंग्स चैपल. व्हाट इज इट? किंग्स चैपल. You see that? The change? It used to be the house of God. It was a place where the altars were built. It was a place where the aroma of the offering ascended heaven. It was a place where Jacob poured the oil on the stone. It was a place where there was a stairway. मैंने आपको बताया शुलाम था, वो DNA जो ascend करता है. लेकिन आज क्या है? It is King's Chapel. खुदा का नहीं, राजा. ये राजा के चमचे हैं. ये जो लोग हैं पॉलिटिकल एजेंट्स हैं. ये याजक पॉलिटिकल एजेंट्स हैं. आज बहुत से मैं नॉर्थ इंडिया में, खास करके पंजाब में देखता हूँ, अपने आप को प्रीस्ट कहते हैं यहोवा के, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट्स हैं. वो इलेक्शन के दिनों में पूरा पॉलिटिक्स का फ़ायदा लेते हैं, लोगों के हेड काउंट करवा के पैसा लेते हैं उनसे. ये यहोवा का कलाम कह रहा है, तुम भ्रष्ट हो. इट इज़ किंग्स चैपल एंड इट इज़ किंग्स कोर्ट. ये राजा का चैपल है और राजा का को, ये राजा के चमचे हैं. पॉलिटिकल नेताओं के चमचे मत बनिए. अगर आप ऐसा शिनाला करते हैं तो उसके लिए तौबा कर लीजिए परमेश्वर से, वरना यहोवा आपको बहुत बुरी जजमेंट से निकालेगा. देन answered Amos and said unto Amaziah, I was no prophet. क्या कहता आमोस? कहता मैं तो नबी था ही नहीं भैया, मैं तो साधारण आदमी हूँ. आई वॉज नो प्रॉफिट नीदर वॉज आई प्रॉफिट सन. ना मैं किसी मेजर माइनर पापा डैडी का बेटा था. आज बहुत इसके पीछे घूम रहे ना लोग, सन ऑफ फलाना, सन ऑफ डिमकाना, ऐसे कई झूठे फ्रॉड प्रॉफिट अपने नाम के साथ लगाते ताकि उनकी मशहूरी हो. क्योंकि वो दूसरे फ्रॉड बहुत बड़े बन गए हैं, ये फ्रॉड भी थोड़े लोग इनके पीछे चल जाएं, जुड़ जाएं, उनका नाम लेके लगाते हैं अपने साथ, सन ऑफ फलाना, सन ऑफ डमकाना. ये कह रहा है मैं किसी का, आई वॉज नो प्रॉफिट नीदर वॉज आई ए प्रॉफिट सन, ना नबी का मैं बेटा था, बट आई वॉज अ हर्डमैन, मैं तो साधारण गडरिया था भैया. एंड ए गैदरर ऑफ सिक्किम और फ्रूट, मैं तो फल तोड़ता था गुल्लर के. तो क्या हुआ? मुझे तो यहोवा ने चुन लिया. मैं तो यहोवा से कहता था मैं नहीं काम कर सकता. आपको मालूम सच्चे नबियों ने तो यहोवा को मना किया. उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते प्रभु, हमें माफ़ कीजिए, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे चेहरा अच्छा नहीं, मैं दिखता नहीं अच्छा, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा. झूठे नबी तो अपने नाम के आगे प्रॉफिट फलाना, प्रॉफिट डिमकाना खुद ही लगा के घूमते हैं. यहोवा ने तो उन्हें बुलाया भी नहीं है. हालेलुया. तो कितनी बुरी दशा है. सच्चे नबी को
वो बोल रहे हैं यहाँ से चला जा। हालेलुया। सच्चे नबी को बोलते हैं, कहता है मैं तो शेपर्ड था। आपको मालूम चरवाहे के लिए क्या शब्द होता है हिब्रू में? रोए। रोए, यहोवा याह रोए, यहोवा मेरा चरवाहा है। याहुआ रोए उसका नाम है, यहोवा मेरा चरवाहा है। आपको मालूम 23 भजन में ये लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, रोए चरवाहा। और आपको मालूम इसी शब्द की ट्रांसलेशन है पास्टर। पास्टर कौन है? चरवाहा है, रोए है खुदा का। और ग्रीक में वर्ड है एपिस्किपोस, जिसकी रूट है स्कूप्स, स्कोप्स। हालेलुया। परमेश्वर नबियों को संकट की घड़ी में खड़ा करता है, जब यहोवा की व्यवस्था को जाता है, जब यहोवा के लोगों को नहीं सिखाए जाते, जब याजक और बैठे लोग अपवित्र जीवन जीते हैं, जब परमेश्वर को पैसे, जब परमेश्वर के भवन को किंग का चैपल बना दिया जाता है, का चैपल, जब पॉलिटिक्स चर्च के अंदर घुस जाती है, जब सियासत से करप्ट किया जाता है यहोवा के घर को, किया जाता है, पानी की शीशी के अंदर डाल के बेचा जाता है, कपड़े के ऊपर प्रार्थना करके उसको बेचा जाता है, मिट्टी को डाल के उसको बेचा जाता है, नमक को डाल के उसको बेचा जाता है, की सेल की जाती है। जब ऐसे अंधकार का समय होता है, तब यहोवा अपने सच्चे संतों को खड़ा करता है, सच्चे नबियों को यहोवा परमेश्वर खड़ा करता है और उनको अपना अभिषेक दे के भेजता है कि उसका काम करें। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा होता है। हालेलुया। आप पढ़ लीजिएगा पहला राजा, उसका 12 अध्याय में एक वचन पढ़ ही देता हूँ आपके लिए। पहला राजा उसका 12 अध्याय में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ, जल्दी से निकाल लीजिए। पहला राजा 12 अध्याय उसके 31-32 वचन में से सुनिए ध्यान से, सुने ध्यान से। अते पंजाबी में पढ़ता, अते उसने यरोबोआम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ 10 ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਗੋਤਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੋਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਗੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਦੋਨੀਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਰੋਤ ਅਤੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਮੋਸ਼ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਲਕੋਮ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਭਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ कि मेरे हुक्म ਤੇ विधियां ਨੂੰ ਮੰਨੇ। बहुत गहरी बातें हैं। परमेश्वर ने एक नौकर के हाथ में राज्य दे दिया नॉर्दर्न किंगडम का, और परमेश्वर ने उससे चाहा कि ये मेरे मार्गों पे चलेगा। सदर्न किंगडम दाऊद का घराना है। राजाओं को दाऊद की ब्लड लाइन में से पैदा होना ज़रूरी है। जो राजा दाऊद की ब्लड लाइन में से नहीं राजा हैं, उनको यहोवा ने अपने क्रोध में राजा बनाया है, क्योंकि दाऊद की ब्लड लाइन यहोवा के संग वफादारी से नहीं चली, इसलिए यहोवा ने उसके शत्रुओं की ब्लड लाइन को खड़ा किया। शाऊल राजा यहोवा की सिद्ध इच्छा से नहीं था, सुलेमान भी यहोवा की सिद्ध इच्छा से नहीं था। अगर सुलेमान यहोवा की सिद्ध इच्छा में है राजा, तो सुलेमान की माता है बैतशेबा, हित्ती औरत है, उरिया की पत्नी है। तो इसका मतलब यह है कि यहोवा ने चाहा कि दाऊद बैतशेबा के साथ जनाकारी करे। यहोवा की सॉवरेनिटी थी, यहोवा की इच्छा थी, ये नहीं है बिल्कुल। यहोवा की सिद्ध इच्छा थी दाऊद के बीज में से राजा गद्दी पे बैठे, और अबशलोम उसका बेटा था जिसको सिंहासन पे बैठना था। परंतु हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्यों ने गलत निर्णय लिए, अपनी स्वतंत्र यहोवा की आज्ञा के विरोध में फैसले लिए, यहोवा मूर्तियां खड़ी कर दी और नॉर्दर्न किंगडम को भ्रष्ट कर दिया, बुरी तरह भ्रष्ट कर दिया। तो वचन में लिखा है, यहोवा ने अपने दास को भेजा कि नबूवत करे, कि वो नबूवत करेंगे, शायद ये लोग तौबा करेंगे। लेकिन लोगों को नबूवत ही पसंद नहीं है, लोगों को अपना पाप में डूबा गंदा जीवन पसंद है। सच्चे नबी पसंद नहीं है, वो मेले पसंद हैं, बड़ी बड़ी भीड़ें,
पसंद है लोगों को, सच्चा कलाम नहीं चाहिए। हालेलुया। अब पढ़िए आप इसके 8 वचन में आइए। कल मैं आपको बता रहा था, मैं फिर से थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा। इसके 8 वचन में लिखा, दस hath the Lord God showed unto me, and behold a basket of summer fruit. And he said, Amos, what seest thou? And I said, basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, the end is come upon my people. I will not pass by them any more, and the song of the temple will be howling in that day, saith the Lord God. And there shall be many dead bodies in the palace, and they shall cast themselves forth with silence. तो प्रभु क्या कह रहा है? अब सुने ध्यान से। यहाँ पे वर्ड प्ले है, मैंने आपको बोला वर्ड प्ले है हिब्रू में। किसी समय इसके ऊपर हम मनन करेंगे। प्रभु उसको एक दर्शन देता है, दर्शन में वो एक टोकरी देखता है, टोकरी के अंदर फल भरे हुए हैं और ये गर्मी के फल हैं। गर्मी में और सर्दी में 2 फसलें आती थी, स्प्रिंग और समर की 2 फसलें आती थी। ये जो समर का फल है टोकरी के अंदर भरा पड़ा है, और आपको मालूम समर की हार्वेस्ट जो है, समर की हार्वेस्ट कर ली गई है। समर की हार्वेस्ट के अगर फल आ गया, अगर समर के फल को, गर्मी के फलों को संभाला नहीं जाएगा तो ये फल बहुत जल्दी से गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ड प्ले क्या है? समर के लिए हिब्रू वर्ड है किट्स, KIETZ, किट्स, और अंत के लिए शब्द है KETZ, कैट्स। एक नुक्ते की कमी है बस, किट्स एंड कैट्स। प्रभु पूछता है तू क्या देखता है? वो बोलता है मैं देखता हूँ कैट्स, समर के फलों की टोकरी, गर्मी के फलों की टोकरी। पर यहोवा कहता मैं देखता हूं कैट्स, अंत, इनका अंत आ गया है। क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है इनका अंत आ गया है। हालेलुया। प्रभु बता रहा है असीरी लोग चढ़ के आ रहे हैं, अशूर का राजा चढ़कर आ रहा है, और अशूर का राजा इन्हें गुलाम बनाकर ले जाएगा। इनका राजा भी गुलाम बनकर चला जाएगा और ये भी प्रजा भी गुलाम बन के चली। जो बैतल में इन्होंने अपना तोड़ दिया जाएगा, और मैं दुश्मन राजा को खड़ा करूंगा इनको सजा देने के लिए। 72 BC में भविष्यवाणी पूरी हुई। खत हिब्रू में यह वर्ड प्ले है। खत का मतलब फल आ गया है, लेकिन यहोवा कहता फल नहीं आया, इन लोगों का अंत आ गया है। और क्या कहता है प्रभु? मैनी कॉपसेस, बहुत सारी, क्या लिखा तीसरे वचन में? एंड द सॉन्ग ऑफ द टेम्पल शैल बी हाउलिंग इन दैट डे। जो गीत गाया जाता है ना, हैकल के अंदर भजन गाए जाते हैं, वो गीत नहीं होंगे जैसे उल्लू चिंगाड़ते हैं ना, हाउलिंग, वो डर्जेस होंगे, वो मातम के गीत बन जाएंगे जो हैकल के अंदर ये गीत गाते हैं। और क्या कहता है प्रभु? ये पैलेस है, ये टेम्पल होना चाहिए था, ये तो यहोवा का भवन होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? ये पैलेस है, ये राजा का राजमहल बन गया है। ये सियासी काम है, यहाँ पे आत्मिक काम नहीं है, साइकिल के अंदर राजनीति है। तो प्रभु कहता है, क्या लिखा प्रभु के वचन में? प्रभु का वचन कहता है कि ये पॉलिटिकल है, ये स्पिरिचुअल नहीं है। और प्रभु कहता है यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज गिरेंगी, बहुत सारी लाशें यहाँ पे गिरेंगी। हालेलुया। आप पढ़िए यशाया नबी की पुस्तक। मैं एक वचन दूं जल्दी से। यशाया की किताब, उसका 28 अध्याय करते जाएं। यशाया 28 के लिए पढ़ना चाहता हूं। यशाया नबी की पुस्तक 28 अध्याय का पहला वचन। हाय इफ्राइम दे शराबियां दे कमंड दे मुकुट उत्ते। वो किसके लिए? हाय किसके लिए? द क्राउन ऑफ प्राइड। जो मुकुट है ना घमंड का, सियासी मुकुट रखा है, प्रभु कहता हाय उसके ऊपर। ये पॉलिटिकल हाउस बन गया यहोवा का घर। तो क्या लिखा आगे वचन में? याह विल बी हिमसेल्फ ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्राउन। यहोवा खुद एक खूबसूरत मुकुट बनेगा, ताज बनेगा। पर किन के लिए? इसका पढ़िए यशाया 1:28। यहोवा उनके लिए खूबसूरत ताज बनेगा, मुकुट बनेगा, जो यहोवा के बकिया हैं, अलग किए गए लोग हैं, जो इनके पाप और भ्रष्टाचारी में नहीं चलते। उनके लिए यहोवा खूबसूरत मुकुट बनेगा।
ये इनके घमंड के मुकुट को यहोवा तोड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, और दुल्हन अपने आदर करती है, पति अपनी दुल्हन का आदर करता है। लेकिन एक पत्नी है जिसका नाम है इजाबेल, वो अपने पति को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। असल में राजा इजाबेल थी, अहाब नहीं था। वो अपने पॉलिटिकल सियासी एजेंडे को, राजनीतिक एजेंडे को, धर्म के शैतानी एजेंडों को पूरा करने के लिए अहाब को इस्तेमाल करती है। यीशु मसीह की कलीसिया ऐसी नहीं है। यीशु मसीह की कलीसिया अपने राजा के लिए जीती है। आपको मालूम लोग क्या करते हैं? लोगों की प्रॉब्लम क्या है? लोग चर्च के अगुओं को खड़ा करके उनको देवता बना देते हैं। फिर चर्चेस का नाम, ओ फलानी चर्च है बहुत तगड़ी जी, उत्थे बहुत बढ़िया बढ़िया है, वहाँ की वर्शिप बहुत तगड़ी है। इंस्टीट्यूशनों को, चर्चेस को, इदारों को देवता बना के उनकी पूजा करते हैं, इज़म की पूजा करते हैं, प्रभु की नहीं करते। जैसे यहोवा विटनेसेस आएंगे, यहोवा की बात नहीं करते, वो वॉच टावर सोसाइटी की बात करते हैं। लेटर डे सेंट वो जोसेफ स्मिथ की मॉर्मनिज्म की बात करेंगे। रोमन कैथोलिक क्या करेंगे? वाटिकन की बात करेंगे। कितनी ग्लोरी, कितना स्प्लेंडर, कितनी पावर है वाटिकन के पास। हेसिडिक ज्यूज किसकी करते हैं बात? वो टैलमुडिक ट्रेडिशन की बात करते हैं। ism, people begin to worship ism and their particular denomination, and they begin to deify their pastors and their denominations. Hallelujah. कई जगह लोग वर्शिप की वर्शिप करते हैं कि वहाँ तो वर्शिप बड़ी ज़बरदस्त है, और वो गिरते हैं इंस्टीट्यूशन, संस्थान, क्योंकि उन्होंने यहोवा के नाम को ऊंचा नहीं किया। हालेलुया। यहोवा का टेम्पल नहीं, पैलेस, राजा का पैलेस। हालेलुया। अब चौथा वचन इसका पढ़ें, क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है, हियर दिस ओ ई दैट स्वालो अप द नीडी, तुम जो ज़रूरतमंदों को निगल जाते हो, इवन टू मेक द पुअर ऑफ द लैंड टू फेल, गरीबों के साथ अन्याय करते हो, ज़बरदस्ती करते हो। और क्या लिखा है? ट्रैम्पल द नीडी, गरीबों को, दुखियों को उनकी सहायता नहीं करते। इसका आगे लिखा है, 5 वचन पढ़ें। व्हेन विल द न्यू मून बी गॉन, कब नया चांद समाप्त होगा? दैट वी मे सेल कॉर्न, ताकि हम गेहूं बेचें। व्हेन द सबथ will be over, that we may set forth wheat, making ephah small and shekel great, and falsifying the balances by deceit. अब ध्यान से इन वचनों को सुनना है आपने। हालेलुया। ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या कहता है प्रभु? प्रभु ये कह रहा है इन 2 वचनों के अंदर। हिंदी में पढ़ लीजिए ये वचन, आमोस नबी की पुस्तक, उसका 5, 7, 8 अध्याय का 5 वचन, और मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार। आमोस नबी की पुस्तक और उसका 8 अध्याय, और सुनिए ध्यान से, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। आमोस 8 अध्याय उसके 5 वचन से, 4 से पढ़ता हूँ। ये सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो। प्रभु कह रहा है तुम लूट पाट मचा रहे हो, लूट पाट। हालेलुया। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी मिनिस्ट्री ऐसी है कि आपको 1.5 लाख रुपया दे के डायमंड पार्टनर, प्लेटिनम पार्टनर बन के बंदा अभी मिल सकता है, लेकिन गरीब इंसान जो 10 रुपये लेकर आया है वो तो धक्के खा के चला जाएगा, क्योंकि आपकी फीस बहुत हाई है और आप अपने आप को तो परमेश्वर समझते हो, लेकिन परमेश्वर तो आपको आपके बाथरूम में भी मिलने आता है, आपकी किचन में भी, आपके बेडरूम में भी मिलता है। हालेलुया। वो दयालु, महाप्रतापी, करुणामयी परमेश्वर है। वो तो वचन में कहता है कि उसने मुझे मसा इसलिए किया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। वो कहता है, सबसे पहला प्रचार ये करता है कि उसका आत्मा मेरे ऊपर, उसने मुझे मसा किया ताकि मैं कंगालों को, गरीब भी नहीं है, कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। आपके तो भाई जो प्लान्स हैं, डायमंड, गोल्डन, प्लैटिनम, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाले, वो तो बड़े रिच लोगों के लिए स्पेशल सर्विसेज है। आपकी तो आराधना में आगे आके सोफे पे बैठने के रेट भी 10-10 हज़ार हैं। स्पेशल ऑडियंस लेनी है, उस कारपेट पे बैठना है जहाँ पे आप हो, उसके 10 हज़ार लेते हो आप।
सुनिए प्रभु क्या कहता है यहाँ पे, क्या कह रहा प्रभु, ये लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। क्या कह रहा है, जो कहते हो कि नया चांद कब बीतेगा, हम अन्न बेच सकें। इन्होंने क्या किया है, परमेश्वर के घर को मर्चेंडाइज किया है। परमेश्वर के नाम को लेके, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के नाम को तेल की शीशी में डाल के, पानी की शीशी में डाल के, कपड़े के ऊपर उसका नाम खोल के उसको बेचा है। ये रिलीजियस काम एक्टिविटीज सारियां जो लेवी व्यवस्था में लिखी हैं, व्यवस्था सार में लिखी हैं, जो पर्व यहोवा के पवित्र मेले थे, वो यहोवा के पर्व थे, सबत यहोवा के दिन थे, इन्होंने इसको बिजनेस का अड्डा बनाया है, कारोबार का अड्डा बनाया है। ये पर्वों को, नए मून्स को मना इसलिए रहे हैं जस्ट फॉर मनी। ऑयल, सॉयल, ब्रेसलेट, क्लोथ्स, मग्स, पिक्चर्स, एनीथिंग, वर्चुअली बेडशीट, टाइल्स, एनीथिंग दैट यू कैन सेल, यू सेल इट। ये कह रहा प्रभु यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा भाई, ये प्रभु बोल रहा है। हर चीज सेल पे है। एनॉइंटिंग, स्पेशल प्रेयर, स्पेशल ब्रेक थ्रू एनॉइंटिंग। खून भी बेचा है भाई अफ्रीका में कई झूठे नबियों ने, ब्लड ऑफ जीसस, $5,000 की शीशी, $2,500 की शीशी। प्रभु क्या कहता है, कहता है इन्होंने मर्चेंडाइज के लिए, ये जो थे, ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ इनकी जो थी, धर्म की, ये जो मेले थे, ये फोक, जिसे हम फोका पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में खोखले धर्म के, और ये वेन्यू थे मार्केटिंग और एंटरप्राइज के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। आपके पास कुछ नहीं था, आप घूमते थे, घर घर में जाके दुआ करते थे, पवित्र आत्मा से भरे थे। जब आपके पास पैसा आया, लोग आ गए, अब आप लोगों को बिजनेस आइडिया सिखाते हो कि बिजनेस कैसे करना है। पहले बताते थे पवित्र आत्मा से कैसे भरना है, अब बताते हो कि बिजनेस कैसे करना है। देखो अपने जीवन पे, प्रभु कहता है देख तू कहाँ से गिरा है, कौन सी बुलंदी से तू गिरा है। ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज कैसी हैं आपको मालूम? चर्च ग्रोथ स्ट्रैटेजीज जो अमेरिका में सिखाई गई, बड़े बड़े प्रीचर हैं, रिक वॉरेन जैसे, पर्पस ड्रिवन लाइफ, पूरे विश्व में लोगों ने पढ़ी पर्पस ड्रिवन लाइफ। क्या फिलॉसफी है चर्च ग्रोथ की? फिलॉसफी क्या है? बहुत बड़ी लोगों का झुंड इकट्ठा करो, और फिर उसके अंदर क्या सिखाया गया पर्पस ड्रिवन लाइफ बुक के अंदर? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। सेकुलर दुनिया के अंदर जो MBA करते हैं, पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, उनको जो फिलॉसफी सिखाई जाती है वो सिखाई गई उन बुक्स के अंदर। पीटर वैगनर जैसे एक बहुत बड़े, तो प्रभु में सो गया बंदा वो, उनकी स्ट्रैटेजीज पढ़िए, क्या है उनकी स्ट्रैटेजीज, और कैसा कलाम देना ये भी सिखाया जाता था कि लोगों को ठोकर देने वाला कलाम कभी नहीं देना, कभी जजमेंट के ऊपर प्रचार मत करो, हेल के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करना, ब्रिमस्टोन फायर के ऊपर प्रचार नहीं करना, ऐसी सीकर सेंसिटिव गॉस्पेल प्रीच करनी, ऐसा सुसमाचार देना लोगों को खींचे अपनी ओर, अच्छा लगे लोगों को लेट देम फील गुड, लोगों को अच्छा महसूस करवाओ, वो चर्च में आके अच्छा महसूस करें, वो आएंगे धीरे 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 चेंज हो जाएंगे। ये रिक वॉरेन की थियोलॉजी थी कि उसको तौबा के लिए नहीं बोलना, उसको पाप नहीं बताना, सिन क्या चीज़ है, पाप क्या चीज़ है, जजमेंट क्या है, हेल क्या है, और कभी लिस्बियन गे की पार्शियलिटी नहीं करना, बोलना लिस्बियन गे से प्रभु प्यार करता है। और कई अमेरिका के बड़े प्रीचर CNN पे जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं CNN के, तो आप भाई लेस्बियन गे के विषय में क्या बोल? नो दिस इज़ नॉट अप टू मी टू जज, आई एम नॉट हेयर टू जज, आई एम जस्ट टू प्रीच द लव ऑफ जीसस। ऐसे गॉस्पल प्रीच करते हैं ये पखंडी प्रीचर, क्योंकि ये किताब लिखते हैं अमेरिका में, इनकी किताब $40 की बिकती है, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर होती है। उस किताब को 10 करोड़ गे भी पढ़ते हैं दुनिया में, उस किताब को 5-7 करोड़ रोमन कैथलिक भी पढ़ते हैं, मॉर्मन भी पढ़ते हैं, यहोवा विटनेसेस भी पढ़ते हैं, तो ये क्यों बुरा बोलेंगे? और फिर ये प्रीचर कहते हैं देखिए हम तो सैलरी भी नहीं लेते, आपको क्या ज़रूरत है सैलरी लेने की? आप 2 किताबें बेचोगे आपको $800 मिलियन आ जाएगा। व्हाट इज़ द नीड फॉर यू टू टेक फ्रॉम द सेक्रेड ऑफरिंग्स? देखिए कलीसिया कहाँ से कहाँ जा रही है। थियोलॉजिकल सेमिनरीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी अमेरिका की थियोलॉजिकल सेमिनरीज़ के अंदर क्या सिखाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, और वो आपकी चर्च ग्रोथ है, आपकी चर्च ग्रो कर रही है।
हालेलुया। आप देखें भाई और बहनों, क्रिश्चियन बुक स्टोर्स के अंदर जाएं, एनालाइज करें। मैं आज से 30 साल पहले प्रभु में आया, मैंने आज से 30 साल पहले की मसीहत भी देखी और अब की भी देख रहा हूँ। किताबें कैसी हैं, क्या लिखा उन किताबों के अंदर, कौन से प्रिंसिपल सिखाए जा रहे हैं। वो साइकोलॉजी सिखा रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव थिंकिंग सिखा रहे हैं प्रचार में। जो मोटिवेशनल प्रीचिंग आप सीख रहे हो ना, सेकुलर जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं, हाउ टू इमेज योर सेल्फ, हाउ टू सी योर सेल्फ, हाउ टू एनहांस योर पर्सनैलिटी, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ, ये प्रिंसिपल सिखा रहे हैं। वो मेटाफिजिकल साइंस सिखा रहे हैं आपको, वो आपको साइकोलॉजी मनोविज्ञान सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हो उसको। कलाम नहीं है ये सच्चा कलाम। हालेलुया। चर्च को एंटरप्राइज बना दिया गया है, बिजनेस वर्ल्ड चर्च के अंदर, और चर्च बिजनेस वर्ल्ड के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। चर्चेस क्या कर रही हैं? एक चर्च दूसरी चर्च के साथ compete करती है। चर्च वो प्रोग्राम लेकर आती है जो लोगों को पसंद हो, वो प्रचार पास्टर करना चाहते हैं जो लोगों को पसंद हो। फैन फॉलोइंग चाहिए, वो फैंस इकट्ठा कर रहे हैं अपने, यीशु मसीह के चेले नहीं। हालेलुया। युद्ध तो कलीसिया का होना चाहिए अंधकार की ताकतों के साथ, लेकिन एक दूसरे से compete कर रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज़ लेकर आएँ, लोगों को बिजी रखें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम लोगों को दें। प्रोग्राम करने हैं भैया चर्च में। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, सुनो ध्यान से ये वचन। प्रभु क्या कहता है? आमोस नबी की किताब में क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है, 5 वचन ध्यान से सुनिए। सेइंग व्हेन विल द न्यू मून बी गॉन दैट वी मे सेल कॉर्न। प्रभु के हैकल में बिजनेस चल रहा है। एंड सैबथ दैट वी मे सेट फोर्थ वीट मेकिंग ईफा, क्या करें? मेकिंग ईफा स्मॉल एंड शेकल बिग। ईफा क्या है? क्या लिखा है इधर हिंदी में? हाँ, एपा लिखा है 5 वचन में। खत्ते को खोलकर एपा को छोटा और शेकल को भारी कर दें और छल से डंडी मारें। ये सब कहाँ हो रहा है? बैतेल में हो रहा है ये काम, जो प्रभु का घर था, लेकिन ये काम बन गया। अब सुने ध्यान से, ईफा क्या है? ईफा एक ऐसा, जैसे मग होता है ना, बड़ा मग है ईफा, जिसके अंदर 4-5 किलो गेहूं के दाने आते हैं। कणक नू मिणदे सन ईफा दे नाल। जैसे हमारे यहाँ आप कह लीजिए पीपे होते हैं, जो अभी मंडियों में काम कर रहे हैं, आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। पीपे होते हैं, पीपों से कणक डालते हैं, पीपों से मिलते हैं। ऐसे इज़राइल में उस समय ईफा होता था, हमारे पीपा होता है, वहाँ ईफा होता था। ईफा के अंदर गेहूं डाला जाता था, गेहूं को क्रश करके रोटी बनाई जाती थी। तो क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? ईफा को छोटा कर दें और शेकल को बड़ा कर दें। शेकल क्या? रुपया है। इजरायलियों की करेंसी को शेकल बोला जाता था। चांदी की शेकल होती थी, चांदी और सोने के सिक्के होते थे। जिस पैमाने के अंदर गेहूं डालना है, जिससे रोटी बननी है, उसको छोटा करो और पैसे को बड़ा करो। क्या कह रहे हैं ये? कि जो रोटी देनी है ना लोगों को, यहोवा का कलाम, वो छोटा सा कर दो। इतना छोटा सा कलाम देना, बस 5 मिनट का, 5-10 मिनट का। बाकी बातें पैसे की करनी है। मनी 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 मनी। अमेरिका में इतने ज़बरदस्त प्रचारक हैं जो पैसे पे ऐसे सिखाते हैं लोगों को, और लोगों को बोलते हैं अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भैया क्रेडिट कार्ड से दो, तुम्हें देना पड़ेगा यहोवा को। गिव एंड यू विल गेट इट बैक। ये लॉटरी खेलने आए हो तुम। तो लोग उस हृदय से नहीं देते प्रभु को कि प्रभु हम तुझे प्यार करते हैं, हमारा सब कुछ तेरा, हम तेरे चरणों में रखते हैं। लोगों के अंदर एक जादूगरी की भावना आती, मैं दूंगा तो मुझे $1 मिलियन मिलेगा। वो बताते हैं $1 मिलियन चाहिए, इतना बीज बीजो, मैं दुआ करूंगा सर पे हाथ रख के $1 मिलियन की अनॉइंटिंग आ जाएगी। अरे भैया तू हाथ रख के दुआ ये क्यों नहीं करता कि मुर्दों को जिंदा करने वाली अनॉइंटिंग आ जाए, कि सर पे हाथ रख के बंदा दुआ करे, लोगों की आंख से छिलके गिरें और वो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। सर पे हाथ रख के दुआ करे, रोगी चंगे हो जाएं, ये क्यों नहीं कर रहा? $1 मिलियन की
एनॉइंटिंग के लिए कहता मैं दुआ करूंगा। प्रभु कहता है तुम मेरे भवन के अंदर, ये मेरा भवन नहीं है, ये तुमने खुद बनाया है, इसके अंदर तुम ईफा को छोटा कर रहे हो, कलाम को मेरे छोटा कर रहे हो, रुपये को बड़ा कर रहे हो। ईफा को छोटा करो, जहां से रोटी आनी जीवन की रोटी, वो छोटा कर दो कलाम, रुपये को बड़ा करो। वो हमेशा मनी 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 पे प्रीच। इंडिया के कई पास्टर हैं, मैं देख रहा हूँ, वो प्रीच कर रहे हैं, ऊपर आ रहा है बैंक में इधर डालो पैसा, गूगल पे डालो, फलाने पे डालो, इस ऐप में डालो। कलाम बहुत थोड़ा सा उनके पास है, ही कुछ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है उनके पास। वो आपको स्क्रिप्चर देंगे कैसे बीज बोना है, वहाँ पे पैसे का बीज बोने की बात ही नहीं कर रहा कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वो उसको खींच के उधर ही ले आएंगे बोने पे। ये काम हो रहा यहोवा की हैकल में। शेकल बड़ा है और बुशल, एफा छोटा है। एफा रोटी है, खुदा का कलाम है। मनुष्य केवल रोटी से, कौन सी रोटी? शारीरिक जो पैसे से आती है उससे नहीं, मनुष्य यहोवा के जीवित कलाम से जिंदा रहता है। जीवित कलाम को छोटा कर दिया है। फंड रेजिंग, मनी रेजिंग के ऊपर कलाम बड़े तगड़े हैं उनके पास। हालेलुया। किसकी पूजा है ये? एक देवता है मैमन। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं ना कि तुम यहोवा और दौलत दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तो यीशु मसीह वर्ड यूज़ कर रहे हैं मैमन। मैमन एक देवता था कनानियों का जो पैसा देता था, जैसे हमारे देश में एक देवी है जो पैसा देती है। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मैमन की पूजा कर रहे हो और संग में यहोवा की भी करना चाहते हो, दोनों नहीं चलेंगे। मैमन और यहोवा दोनों की पूजा तुम नहीं कर सकते। आपको मालूम, आप वचन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़िए। वचन नया नियम पैसे के विषय में बहुत कम बोलता है, लेकिन जो झूठे प्रीचर हैं अमेरिका के, प्रॉस्पेरिटी टीचर, वो हर चीज़ को पैसे की ओर ले गए हैं। टैलेंट का मतलब भी पैसा है, इसका मतलब भी पैसा है, इसका मतलब दिस सिग्निफाइज दिस, ये दिस इज द सिंबल ऑफ दैट। सब कलाम को भ्रष्ट किए। हिब्राइक पर्सपेक्टिव में जो कलाम यहोवा ने इब्रानी में इब्रानी लोगों को दिया, वो पर्सपेक्टिव नहीं पेश किया उन्होंने, ठगने वाला पर्सपेक्टिव पेश किया। वो ईफा को छोटा करेंगे, कलाम तो यहोवा का होगा ही नहीं, थोड़ा सा होगा। मनी की टीचिंग देंगे, अभी भी कई दे रहे हैं कि कैसे मनी इकट्ठा करनी है। ट्रेजेडी चल रही ना, इसके अंदर मनी कैसे आए आपके पास, ये नहीं सिखा रहे। इस समय रिपेंट करो, प्रभु के चरणों में आओ, बिशप के लिए प्रार्थना करो कि लोगों की आंखें खुलें, व प्रभु के चरणों में आओ। वो बता रहे हैं मनी कैसे आए आपके पास, जज करें इनकी स्पिरिट। न्यू टेस्टामेंट डजंट स्पीक मच अबाउट मनी। When New Testament speaks about money, it is talking about very dangerous warning. जब कलाम पैसे के विषय में नया नियम बोलता है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट वार्निंग। वार्निंग में बोल रहा है कि इसकी करप्शन क्या होती है पैसे की, और पैसा धोखा कैसे देता है, ये बताता है कलाम। प्रभु के कलाम में लिखा है लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। प्रेरित पौलुस तिमोथियस जवान प्रचारक को लिख रहा है, जो एफेसस की कलीसिया का पासवान है, उसको लिख रहा, बहुत बड़ी कलीसिया का पासवान है, और उस कलीसिया में कई पुराने वो लोग हैं जो यीशु मसीह के समय के, यीशु मसीह के संग थे, उनको लिख रहा है। बिग चर्च है, क्या लिख रहा है? लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। पैसे का प्यार। वो बोलेंगे नहीं जी पैसा नहीं, पैसे का प्यार है। अरे भैया, पैसे से तू कब प्यार करने लगेगा तुझे खुद पता नहीं लगेगा, तुझे मालूम नहीं पड़ेगा ये कि व्हेन यू फेल इन लव विद मनी। पैसे का प्रेम, एवरिस वर्ड है ग्रीक में, एवरिस, लोलुपता, पैसे के लिए लोलुपता। हर काम में पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी। हर स्पिरिचुअल चीज को बेचना बेचना बेचना, पैसा। इट गेट्स ऑन योर नर्व्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु के काम में पैसे की ज़रूरत होती है, मैं डिनाई नहीं करता। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं आप हर समय मनी 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 टॉक ही करते रहें। पवित्र आत्मा खुद लोगों से बोलता है, खुद लोग, आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा लोगों के हृदय को खोलेगा, वो बोएंगे प्रभु के लिए। डोंट बी मनी मॉन्गर। हालेलुया। पैसे का प्रेम, एवरिस, रूट ऑफ ऑल ईवल, जड़ है। जड़ के लिए आपको मालूम ग्रीक वर्ड है रीजा, जिसका मतलब है गर्भ, कोख को बोलते हैं, जहां बच्चा पैदा होता है। पैसे का लालच हर बुराई की कोख है।
वहाँ हर बुराई पैदा होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम ये झूठी शिक्षा है जो आपको ये कहती है अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो आपका विश्वास काम नहीं कर रहा। क्या ये सिखाते हैं कि मटेरियल ब्लेसिंग जो है वो पैमाना है आपके जीवन को नापने का? ये एब्सोल्युटली बकवास और झूठी टीचिंग है जो आपको ये सिखाते हैं ना कि इफ मनी इज नॉट कमिंग टू यू, योर फेथ इज नॉट वर्किंग। दैट्स अ लाई फ्रॉम द पिट ऑफ हेल। इट्स नॉट क्रिश्चियनिटी, इट्स मैमन वर्शिप। ये मसीहत नहीं है, ये मैमन उस देवता की पूजा करवा रहे हैं। वो पादरी खुद करते हैं, वो मनी को पूजते हैं, मनी के लवर हैं वो, और दूसरों को भी सिखाते हैं तुम भी मनी की पूजा करो, तुम्हें मिलेगी वेल्थ, उसमें से कट हमें देना लाके। उन्होंने यीशु मसीह नहीं सिखाया, वो फेथ सिखाते हैं, वो फेथ जो यीशु मसीह की बाजू को मरोड़ के पैसा निकलवाए यीशु मसीह से। हालेलुया। जब कलाम बोलता है ना पैसे के विषय में तो क्या कहता है कलाम? कलाम कहता है डोंट लव मैमन, पैसे को प्यार मत करो। वो रिचेज की बात नहीं करता कलाम। कलाम ये कहता है रिचेज का डेंजर क्या है, वेल्थ का खतरा क्या होगा। तेरा हार्ट जो है तुझे करप्ट कर देगा। हालेलुया। बहुत सारे प्रीचरों की टॉक जो है ना 70%, मैंने बहुतेरों को सुना है, 70% उनके कलाम को निचोड़ो 70% मनी है। शेकल बड़ा है, ईफा छोटा है, कलाम इतना सा है उनके पास, मनी 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 टॉक बड़ी है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग झूठी सेवकाइयों में पैसा डालते हैं ये सोच के कि यहाँ का बड़ा अभिषेक हमें मिल जाएगा, जैसे ये पादरी बड़े वेल्दी ऐसे हम भी हो जाएंगे। और कई जिन्युइन सेवकाइयाँ हैं छोटे स्तर पे काम कर रही हैं, उनको लोग पैसा नहीं देते। मैं एक टीचर को सुन रहा था, मैं डरता नहीं हूँ लेकिन मैं किसी का अनादर भी नहीं करना चाहता। एक बड़ी फेमस अमेरिकन प्रीचर है, आप सभी जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस है। उसकी बहुत सी टीचिंग हेरेटिकल है, मैंने सालों साल सुनी है। अब मैं बताता हूँ कि वो फेमस जो लेडी टीचर क्या प्रीच कर रही थी। वो कहती है तुम प्रभु को दो, खुले दिल से दो, जब तुम प्रभु को दोगे प्रभु तुम्हें एक रसीद देगा, वो रसीद तुम रखो अपने पास, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े प्रभु के पास जाओ, वो रसीद प्रभु को दिखाओ, तो जो तुम्हें चाहिए प्रभु तुम्हें वापस दे देगा। मैंने इस शिक्षा को ढूंढा कलाम में, बहुत अध्ययन किया, मुझे लगा ये बहुत फॉल्स टीचिंग है, हेरेटिकल टीचिंग है। कलाम ऐसा नहीं कहता है। कलाम तो ये कहता है गॉड इज़ नो डेटर ऑफ एनी मैन, परमेश्वर किसी इंसान का कर्जदार नहीं है। वरना आप परमेश्वर को दोगे क्या? क्या दोगे? जो साल्वेशन उसने आपको दी है, जो अनंत जीवन उसने आपको दिया है, जो उसने अपने स्वर्ग राज्य में आपको दाखिला दिया है, जो उसके पुत्र का बेशकीमती लहू आपके लिए बहाया गया है। क्या दोगे वो कांटों का ताज जो उसने पहना उसके इवज में? क्या दोगे वो कोड़े जो उसकी पीठ पे पड़े उसके इवज में? क्या दोगे उसके अंदरूनी घाव जो अंदर का लहू बहा, उसकी कीमत क्या दोगे आप? क्या दोगे उसकी कीमत जब उसको नंगा कर दिया गया क्रूस के ऊपर? कुछ है आपके पास देने के लिए? हम तो खुद नंगे और अभागे, तुच्छ और दरिद्र लोग हैं। मिट्टी है ये मिट्टी, क्या उसको लौटा के दे सकते हैं? उसके लिए मनुष्य क्या दे सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। हिब्रू भाषा में रसीद के लिए उसने बोला कि रसीद ले लो यहोवा से, रसीद रखो। जैसे आपने किसी मिनिस्ट्री को पैसा भेजा, उसकी रसीद रखो और प्रार्थना में यहोवा के आगे लेकर जाओ, उससे मांगो कि हमने दिया तो हमें आप दो। ये देना कितना घटिया ढंग का देना है। पहली बात तो ये कि तुम्हारे पास है क्या जो तुम यहोवा को दे सकते हो? कौन सी ऐसी चीज़ जो जगत में लाए जो उसको दे सकते हो? कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस यही बात कहता है। अब सुनिए, हिब्रू भाषा में खबाला एक शब्द है, खबाला, जिसका मतलब होता है रसीद, जिसका मतलब होता है रसीद को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुझे शब्द नहीं आ रहा। बाउचर जो मिल जाता है ना आपको, आपने दे दिया, उसकी रसीद मिल गई, रिसीट बोलते हैं। तो रसीद कह देते हैं। अगर किसी को मालूम है हिंदी पंजाबी में तो प्लीज़ टाइप करें रिसीट। तो हिब्रू वर्ड है कबाला, खबाला, जहाँ से
यहूदियों का मिस्टिकल धर्म निकलता है कबाला। कबाला एक मिस्टिकल ब्रांच है। कबाला की कुछ शिक्षा सही है, कबाला की बहुत सी शिक्षा गलत है, और बहुत सी शिक्षा शैतानी भी है। तो कबाला का मतलब होता है रिसीट, ठीक है। लेकिन कलाम को पढ़ के देखो, जब आप प्रभु के लिए बोलते हो, प्रभु आपको कबाला कभी नहीं देता। अब मैं ग्रीक में लेकर आता हूँ। यूनानी भाषा में दो शब्द हैं रिसीट के लिए। रिसीट के लिए दो शब्द हैं। एक शब्द है थेथलोस्ताई, थेथलोस्ताई, और दूसरा शब्द है अराबनॉन। थेथलोस्ताई दूसरा शब्द है अराबनॉन। आपको मालूम, जब महायाजक हाँ, पर्ची, भाई रवि प्रकाश बोल रहे हैं, पर्ची। यहोवा कभी आपको पर्ची नहीं देता। किसके लिए? कि आपने यहोवा के लिए बोया है। लेकिन वो बहन कह रही थी कि पर्ची यहोवा को दिखाओ तो यहोवा आपको दे देगा। तो पर्ची के लिए दो वर्ड हैं। हिब्रू में वर्ड है खबाला, जहाँ से कबाला निकलता है। ग्रीक में है तेथलोस्ताए और अराबनोन। अब सुनिए ध्यान से, जब महायाजक भेड़ें मेमना देती हैं तो मेमने को सिलेक्ट किया जाता है। 100 भेड़ों में से कुछ खास जो हामिला होती हैं उसमें से खास मेमने निकाले जाते हैं, जिनको कोई ऐब ना हो, जिनकी बोन सही हो, जिनकी स्किन में ऐब ना हो, जिनके नखून सही हों, जिनकी पूरी बॉडी मुकम्मल हो। उन मेमनों को फसा की कुर्बानी के लिए अलग किया जाता है। तो याजक जब मेमना देखता है ना सही, उसका निरीक्षण करता है पूरी तरह, और मेमना बिल्कुल सिद्ध होता है, तो याजक बोलता है तेथलोस्ताई, कामिल मेमना मिल गया। आपको मालूम, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटके थे, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि सारा कलाम पूरा हुआ, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अंत में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इट इज़ फिनिश्ड, समाप्त हुआ, पूरा हुआ। लेकिन ग्रीक में वर्ड यूहन्ना जो लिखता है वो ग्रीक वर्ड है तेथलोस्ताई। यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, जिसका असली मतलब क्या है? तेथलोस्ताई का मतलब ये होता है, आप गए कोई चीज़ खरीदने के लिए, उस चीज़ की कीमत है, आपने पूरी कीमत दी, उन्होंने कीमत को काउंट किया आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, या आपने कैश दिया, उन्होंने सारा कैश या आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की एंट्री चेक की, उसकी रसीद अपने काउंटर के अंदर रखी, फिर उन्होंने एक रिसीट बनाई, एक पर्ची बनाई, एक वाउचर बनाया, उसके ऊपर स्टैंप मार के लिखा पेड इन फुल, पेड इन फुल। वो है तेथलोस्ताई, रसीद। यीशु मसीह ने रसीद दी है क्रूस से, तेथलोस्ताई, पूरा हो गया। अब तुम्हें परगेटोरी जाने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू पे फॉर योर ओन। मर गए तो उनके लिए सैक्रामेंट करवाने की ज़रूरत नहीं, मैंने पूरी की पूरी कीमत दे दी। अब आपको मुक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास प्लस नथिंग से मिलेगी। यीशु मसीह के क्रूस के काम पे विश्वास, और संग में कुछ नहीं जोड़ना, आपको अनंत जीवन, मोक्ष, निर्वाण, हमेशा का जीवन मिलता है। दूसरी शब्द है अराबनॉन। अराबनॉन बड़ा ज़बरदस्त शब्द है। अराबनॉन का मतलब होता है प्लेज, मतलब एक वादा, करारनामा, या अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदनी है तो आप उसकी डाउन पेमेंट करते हो। आप गाड़ी खरीदने गए, घर खरीदने गए, उसकी डाउन पेमेंट कर देते हो। डाउन पेमेंट की आपको रिसीट मिलती है, पर्ची मिलती है, वाउचर मिलता है, उसे बोला जाता है अराबनॉन। परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी, नया जीवन दिया, हमें परमेश्वर स्वर्ग लेके जाएगा, हम परमेश्वर के संग रहेंगे अनंत काल के लिए। उसका परमेश्वर ने हमें एक अर्नेस्ट दिया है, डिपॉजिट दे दिया है। परमेश्वर ने हमें उसकी पर्ची काट के दे दी है, और वो पर्ची है होली स्पिरिट, जिसे बयाना बोला जाता है। पंजाबी की बाइबल में लिखा उसने बयाना दे दिया पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा हमें प्लेज के रूप में मिला है। पवित्र आत्मा से मोहर लगा दी गई है कि हमारी ट्रांजैक्शन हो गई, हालेलुया, हमारी पेमेंट हुई है। और आपको मालूम, अब जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या देखेंगे आके? प्रभु यीशु मसीह चेक करेंगे इस बंदे के पास अराबनॉन है या नहीं। When Jesus will come, he will check whether you have an arabnon, Greek word arabnon, whether you have a voucher, whether you have the earnest that God paid you as he stamped you with the Holy Spirit. यीशु मसीह आके चेक करेंगे कि आप पे मोहर लगी है अराबनॉन की या नहीं। ये ऐसे है जैसे मान लो किसी ने विदेश से आपके लिए पैसे भेजे, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम,
तो जब वो ट्रांजैक्शन हुई तो एक नंबर जनरेट किया कंप्यूटर ने, उसे MTCN मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर भी बोलते हैं, रेफरेंस नंबर भी बोलते हैं। वो आपके प्यार करने वाले जिन्होंने आपको कुछ गिफ्ट भेजा है वो नंबर भेजेंगे आपको। वो नंबर एक कंप्यूटर जनरेटेड कोड होगा, वो नंबर लेकर आप उस आउटलेट पे जाएंगे तो वो नंबर उसमें डालेंगे तो आपको पेमेंट हो जाएगी। ये है अराबनॉन, the earnest of the Holy Spirit that has already been given to you. When Jesus comes, the full payment shall be made. He will take you home. Jesus will come and he will check the Arabnon. Hallelujah. ये झूठे शिक्षक जो ये सिखाते हैं कि रिसीट ले जाओ और यहोवा से बोलना ये रिसीट हमने दी है तुझे, अब हमें दो, दैट्स अल्टीरियर गिविंग। वो बहुत ही भ्रष्ट दिल से परमेश्वर को दी गई ऑफरिंग है। हालेलुया। आपको मालूम, हम जो लोगों को सिखाते हैं हमारा ज़्यादा न्याय होगा। अगर हम डरते हैं इस बात से, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, तो हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रभु के कलाम में लिखा है सिखाने वालों की ज़्यादा स्ट्रिक्ट जजमेंट होगी। एक परमेश्वर का सच्चा कलाम सिखाने वाला परमेश्वर की भेड़ों को भेड़िए से बचाता है। झूठा कलाम सिखाने वाला परमेश्वर की भेड़ों को भेड़िए की खो के अंदर ले जाता है। एक सच्चा कलाम सिखाने वाला परमेश्वर का दास लोगों को जिंदगी के जल के चश्मे के पास लाता है। एक झूठा कलाम सिखाने वाला प्रचारक लोगों को टूटे हुए हौद के पास लेके जाता है, गंदा पानी पिलाता है उनको। एक झूठा चरवाहा लोगों को सूखी घास खिलाता है। एक अच्छा चरवाहा लोगों को हरी हरी घास की चराइयों में लेके जाता है, परमेश्वर की भेड़ों को सुखदायी जल के झरनों के पास लेकर जाता है। फिर चरवाहा क्या करता है जब भेड़ें खाती हैं? आपको मालूम, मुझे नहीं लगता कि ये आज कलाम पूरा हो पाएगा, तो खैर मैं आपको बताता हूँ। जब चरवाहा इसराइल में भेड़ों को लेके जाता है तो इसराइल में उस ज़माने में बहुत स्नेक होते थे, रैटल स्नेक, सांप होते थे। सांप की छोटे छोटे बिल होते थे। तो चरवाहा ऐसे देखता है कि हरी घास की तराई है और चरवाहा भेड़ों को लेकर आया, तो चरवाहा क्या करता है? चरवाहा सीटी मारता है तो भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं, लेकिन चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, खुद उसके अंदर घुसता है जाके तराई के अंदर जहाँ घास लगी है, और उसके पास एक लाठी एक सोटा है, उनकी सहायता से ऐसे घास को हटा हटा के देखता है। चरवाहा देखता है कि नीचे कोई खुड तो नहीं, पंजाबी में, या बिल तो नहीं, होल तो नहीं। जब वो देखता है ना नीचे होल है, तो चरवाहे के पास जैतून के तेल की एक मश्क है। वो उस मश्क को खोलता है, थोड़ा सा जैतून का तेल बीच में डाल देता है हुड के, फिर आगे बढ़ता है, देखता है एक और है बिल, उसके अंदर भी तेल डालता है। चरवाहा पूरे यत्न से, मेहनत से पूरी तराई को चेक करता है, चरागाह को। हर एक बिल के अंदर वो क्या डाल देता है? जैतून का तेल डाल देता है। जब पूरे खेत का निरीक्षण कर लेता है चरवाहा, फिर विसल मारता है, भेड़ें भागी आती हैं, क्योंकि भेड़ों को दिखता नहीं है, भेड़ों को सुनता है। एक भेड़ 3 से 4 फुट तक से ज़्यादा नहीं देख पाती, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। इसलिए लोग कहते हैं भेड़ चाल, मतलब वो पीछे भागी जाती है। यही होता है, इसका फ़ायदा झूठे प्रचारक उठाते हैं, भेड़ चाल का। झूठे डेरे अड्डे बनाते हैं, वहाँ पे क्या नहीं है? एफा नहीं है। एफा को कहते हैं छोटा कर दो कलाम को, शेकल को बड़ा कर दो। शेकल बड़ा है, एफा छोटा है। हज़ारों लोग जुड़े हैं वहाँ उन लोगों के साथ, क्योंकि उनको भी शेकल मिलता है, एफा नहीं मिलता। आपको क्या चाहिए? एफा, यहोवा का जिंदा कलाम, या संसार का लोहा लंगड़? क्या चाहिए? तो चरवाहे ने जब तेल डाल दिया सारे के बिल में, सीटी मारता, भेड़ें आ जाती हैं। भेड़ें आती हैं, घास खाती हैं। भेड़ों के खुरों की आवाज़ सुन के सांप बिल के अंदर चौकन्ने हो जाते हैं। तो सांप ना भेड़ों को काटते थे, उनका मांस भी खा लेते थे वो रेटल्स भी। अब सांप को पता लग गया कि भेड़ें आ गई। सांप बिल में से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेल के कारण चढ़ नहीं पा रहे, फिसलन हो गई है बिल में। वो फिसल के नीचे गिरते हैं, फिर ट्राई करते चढ़ने की, फिर फिसल के नीचे गिरते हैं, फिर ट्राई करते चढ़ने की, फिर फिसल के नीचे गिरते हैं। आपको मालूम क्या लिखा है 23 ज़बूर में? 23 ज़बूर में भेड़ गा के कहती है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है।
उनके खुरों के नीचे शत्रु हैं, सांप उनको काटना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक के तेल के कारण उन्हें टच भी नहीं कर पा रहे। और शत्रु हैं नीचे पांव के, लेकिन सामने यहोवा ने मेज बनाई है खाने के लिए। हालेलुया। मेज खाने के लिए, यहोवा की मेज से खाइए। एफा बड़ा करेगा यहोवा, शेकल छोटा करेगा। शेकल नहीं खा सकते आप, सोना चांदी थोड़ा निगल लोगे भाई। भोजन चाहिए आपको, यहोवा के भोजन के टेबल पे आइए। वो आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। फिर चरवाहा क्या करता है, अपनी जब उसकी भेड़ें चर लेती हैं दबा के, वो पानी पीती सुखदायी जल के झरनों से, झरनों के किनारे से लेट जाती हैं। फिर चरवाहा उस मश्क में से और तेल लेता है, अपनी भेड़ को मसाज करता है, ऐसे उसके ऊन को हटा के नीचे तेल से मसाजता है। आपको मालूम, अभिषेक करने का मतलब ऐसे तेल डालना नहीं होता है। मासा वर्ड का मतलब होता है मसाज करना। मासा मीन्स मसाज। गॉड विल मसाज यू with the anointing oil. Your good shepherd will give you a massage, and all your fatigue will vanish. You will feel rejuvenated. You will feel energized. You will stay young forever. Hallelujah. Because he will pour the anointing oil. वो अभिषेक के तेल से ऐसे आपको मसा करेगा। आपको मालूम, जब चरवाहा अपनी भेड़ को मसा करता है, इज़राइल में छोटी छोटी जोकें होती हैं, लीचेस होती हैं, जोकें होती हैं, बिच्छू होते हैं और मच्छर होते हैं। जब जैतून का तेल ऐसे लगा के मसाज कर दी जाती है, जोक चिपक नहीं पाती भेड़ को। भेड़ जोक बालों के नीचे चिपक के भेड़ का खून चूसती है, लेकिन जब मसाज की जाएगी, यहोवा मसाज करेगा, यहोवा आपका चरवाहा है, वो मसाज करेगा, तो जोक आपका खून नहीं चूस पाएगी, आपको बिच्छू नहीं काट पाएगा। उसकी फ्रेगरेंस से, ऑयल की फ्रेगरेंस से मच्छर भाग जाएंगे। यहोवा आपके शत्रुओं को सच्चा जो सेवक है वो ईफा को बड़ा करेगा, ईफा बड़ा होगा। हालेलुया। ईफा समझते हैं, ये कलाम बड़ा होगा सच्चे सेवक का। शेकल बड़ा नहीं होगा। शेकल आपको देना है दो, बोना है बो, नहीं बोना है ना बो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको आशीष मिले, बोना चाहो बो दो, नहीं बोना मत बो। वो सिखाएगा ज़रूर आपको बोने के विषय में, क्योंकि बोने से आपको आशीष मिलेगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से निकाल के नहीं, कलाम के संदर्भ से निकाल के नहीं, लालची स्वार्थी ढंग से गलत इंटरप्रिटेशन करके नहीं। तो प्रभु क्या कह रहा है, इन्होंने बैतल को बिजनेस का अड्डा बनाया है। मैं इसके ऊपर कल फिर प्रचार करूंगा, बाकी हिस्सा इसका अभी बाकी है, कल मॉर्निंग में फिर करेंगे। आज शाम को हम शबोत पंतेकुस के ऊपर सेलिब्रेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। 6 o'clock मुझे मिलिएगा प्लीज़, और नए लोगों को बताइए, मेरी फेसबुक में जोड़िए, नए और लोगों तक प्रभु का वचन पहुँचे। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।